conditions are given. So if AD is equal to BC is given, means A comma B related to C comma D, then we have to prove that R is an equivalence relation. So we just started with the question, whatever the given terms are given in a question. So N is a set of natural numbers, and R, whatever the relation is given here, we just define in a terms of a set. So R, A comma B belongs to N into N. What is the meaning of N into N? This means what is known as a Cartesian product. Whenever we have to define a relation, whenever we have to define a relation, the Cartesian product is important. Without Cartesian product, you are not able to show, or we are not able to define any relation. So that's why N into N is defined here. So A comma B related to C comma D if and only if AD is equal to BC. Now first we have to define as a reflexive. So when we have to define the term as a reflexive, you must remember that is a element repeated to its element related to itself only. So but here a pair of elements are given, or the conditions are given as a pair of elements. So A comma B related to C comma D is given. This means we have to prove that is A comma B related to A comma B itself, because in a reflexive the same term define itself only. So A comma B related to A comma B. So according to given, if A comma B related to C comma D is there, means AD is equal to BC. So here we have to define here that is AB is equal to BA according to the reflexive consideration. But when I define that is A comma B is equal to B comma A, this multiplication hold in here, that is according to the commutative law in multiplication, hold in these natural numbers. So that's why we can say that is AB is equal to BA is defined. Therefore A comma B related to A comma B, and R is a reflexive term. Similarly, the second part we have to define as a symmetric. What is a symmetric? Symmetric means A related to B is equal to A related to B and B related to A. Both terms must be defined. But here a pair of terms are given. Matlab A comma B related to C comma D is given. Means we have to define one more term, that is C comma D related to A comma B. So according to this, this is a given condition in your question. So AD is equal to BC we taken. Therefore, BC is equal to AD. Just we are rearranging the terms. Right hand side part we written here is the left hand side, and left hand side written as the right hand side. And just we shift the elements. So B into C we can write as a C into B is equal to D into A. So this is multiplication law hold here. So we can say that is if A comma B related to C comma D is given, means AD is equal to BC. मतलब first bracket का जो first element into second element of the second bracket. So according to this we can just simplify this part. So this means what? C comma D, the first element from both the left hand side and right hand side belongs to first bracket. So C comma D related to A comma B. Therefore the symmetric terms is defined here, so we can say that is it is a symmetric. Similarly, the last part is we have to verify that is a transitive. Transitive means A related to B, B related to C. Is if there, then we can say that is A related to C. So let A comma B related to C comma D, and C comma D related to E comma F. So we have to just define the terms here. AD is equal to BC. This is given. This term is given. So according to that, we just written is this part, that is CF is equal to D. We just shift the values. B shifted at here and D shifted here. So the terms are multiplication on both the sides. So by default, when the multiplication is transferred to other sides, it convert into a division part. So we just written here that is A by B is equal to C by D, and C by D is equal to E by F. So there are C by D terms are present in both the equations on both the sides. So we can say that is A by B is equal to E by A. And after comparing this part, we again just switch the values here, so that we got that is AF is equal to BE. And according to that condition, we can say that is A comma B related to E comma F, and R is a transitive.
Therefore, R is an equivalence relation. Now we'll move ahead with the next question. See, again and again, I'm telling you that is equivalence part by default you will see in examination for 6 or 8 marks. So don't forget how to solve such types of a question. Now, next question we have to define here. From today point of view, I think we have to solve that is a second question. S is equal to 1, 2, 3, 4, 5, or set is given 1, 2, 3, 4, and 5. And A is equal to S into S. Define the following relation. Define the following relations R on A, that is A comma B, or instead of here I'm writing here R on A comma B related to A dash comma B dash. If and only if A into B dash is equal to A dash into B. So this is again a similar kind of a question जो हमने solve किया है, खाली वहाँ पे A B is related to C comma D. So the first I'm just ये आपके लिए मैं work दे रहा हूँ. We have to define that is A. First, R is an equivalence relation. Equivalence equivalence relation. Second, we have to prove or compute A by R. A by R. So we have to compute this part. जैसे फर्स्ट पार्ट ये ऊपर का क्वेश्चन हमने वेरीफाई किया है, सिमिलर वे से आप इसको भी वेरीफाई कर लोगे, खाली इधर ए डैश एंड बी डैश दिया है. सो ए बाय आर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए बाय आर हियर? सो अकॉर्डिंग टू द concept of a relations, A by R means we have to find the collection of all those order pairs which have same ratio, which have same ratio. So according to I'm just writing here this parts. This means we have to calculate order pair order pair which have same ratio, which have same ratio. So this is S into S. We can define S into S. अभी S into S पहले हम लोग को डिफाइन करना होगा, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे लेना होगा S into S का, और उसके बाद उसको डिवाइड बाय दैट इज गिवन, दैट इज अ रिलेशन A by R. सो वी हैव टू उसको रिलेशन के बेसिस पे हमको देखना है, दैट इज A कॉमा B डैश और A कॉमा B रिलेटेड टू A डैश कॉमा B डैश के बेसिस पे.
So according to that basis, we have to see the relation and we have to define that is which have the same ratio. So I'm just define this parting this part, that is S into S, or we can just represent it as A also, because it is a clearly given A is equal to S into S. So डिफाइन करोगे सेम सेट ले लो यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस पार्ट वी हैव टू use, that is S is equal to 1, 2, 3, 4 and 5. Similarly S is equal to 1, 2, 3, 4 and 5. Therefore A is equal to, we have to multiply 1, 1, 1 comma 2, 1 comma 3, 1 comma 4, 1 comma 5. Next 2 comma 1, 2 comma 2, 2 comma 3, 2 comma 4, 2 comma 5, 3 comma 1, 3 comma 2, 3 comma 3, 3 comma 4, 3 comma 5, 4 comma 1, 4 comma 2, 4 comma 3, 4 comma 4, 4 comma 5, and last one will becomes 5 comma 1, 5 comma 2, 5 comma 3, 5 comma 4 and 5 comma 5. So this is our Cartesian product or ordered pair according to the given set S is equal to 1 2 3 4 5. अब यहाँ पे हमको डिफाइन करना है, मतलब ऑर्डर्ड पेयर लेना है प्रॉपर वे से। तो ए बाय आर के बेसिस पे हम लोग आएंगे, ए बाय आर। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। आई एम जस्ट राइटिंग। सो पहला तो ये पार्ट, ये तो सेम ऑर्डर्ड पेयर है, दैट इज वी कैन से दैट इज 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 3 कॉमा 3, 4 कॉमा 4, 5 comma 5. Next, I'm here taking here this part as, just try to understand this part. 2 comma 1, 2 comma 1 and 4 comma 2. 2 comma 1, 4 comma 2. A into D, A into D is equal to B into C. Means according to this, A comma B related to A dash B dash. So according to this, ये पार्ट अलग है, ये तो रिफ्लेक्सिव वाले पार्ट है, ये तो खुद से खुद को बिलोंग कर रहे हैं, तो सेम ही आने वाला है बाय डिफॉल्ट। बट हियर अप वी आर टेकन दैट इज ए कॉमा बी रिलेटेड टू ए डैश कॉमा बी डैश। सो ए डैश ए इंटू बी डैश मीन्स 2 into 2, यही कंडीशन है ना हमको, ए इंटू बी डैश मतलब फर्स्ट एलिमेंट और इसका सेकेंड एलिमेंट। तो 2 into 2 दैट इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 1 into 4, तो 4 मिल जाएगा। तो ये एक पेयर हमको मिल रहा है, कॉमा व्हाट विल बी द नेक्स्ट, भी उसको रिलेशन डिफाइन करना है। ए बाय आर आपको दिया गया है, जो भी आपका सेट है उसमें ऑर्डर्ड पेयर यही चीज विच आर द सेम रेशियो। सो वी आर टेकिंग हियर और कोई टर्म, सो आई एम टेकिंग दैट इज वन मोर टर्म हियर, 3 comma 1 only, 3 comma 1, similarly 4 comma 1, just try to understand 4 comma 1,
Next part I'm taking here 5 comma 1. 5 comma 1. हियर अगेन आई एम टेकिंग, जैसे यहाँ पे 2 कॉमा 1 आपने लिया है तो उसी तरह आप इसको ये भी लिख सकते हो 1 कॉमा 2 एंड 2 कॉमा 4, 1 कॉमा 2 एंड 2 कॉमा 4. सिमिलरली 1 कॉमा 3 एज इट इज़ आपका आ जाएगा 1 कॉमा 3, क्योंकि इसको दूसरा टर्म आप कोई भी डिफाइन करोगे तो ये चीज़ आपका एग्जिस्ट नहीं हो रहा है, इसकी वजह से केप्ट राइटिंग एज इट इज़ 1 कॉमा 4, 1 कॉमा 5. ऑलरेडी 5 कॉमा 1 आपने यहाँ पे दिया ही है तो 1 कॉमा 5 भी उसी तरह एग्जिस्ट हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट पार्ट इज 2 कॉमा 3. अगर देखते हैं जस्ट लाइक 2 कॉमा 3, तो ऐसा कोई दूसरा ब्रैकेट है नहीं जिसका अगर सिंप्लीफिकेशन जस्ट लाइक अगर माइंड में हो 2 कॉमा 3 हमने ले लिया फॉर एग्जांपल, और यहाँ से 3 कॉमा 2 लेते हैं, तो ए बी सी डी या ए बी ए डैश बी डैश, तो ए डैश इंटू बी डैश करोगे तो 4 आ जाएगा, तो वो इक्वल नहीं हो रहा है आपका. तो इसका पार्ट अगर नहीं मिल रहा है तो kept right as it is. So I'm just writing this part as it is 2 comma 3. Similarly 3 comma 2, 3 comma 2, फिर 2 comma 3 हो गया. 2 comma 4 तो आपने देख लिया यहाँ पे कहाँ गया, 2 comma 4 और 1 comma 2 में डिफाइन हो पा रहा है, तो वो चीज़ भी हेलो सर. which we written as it is. Please write a message. Don't what happened. सर अगर हम लोग ऐसा रिलेशन बनाए तो 2,3, 3,4 और 4,5, फर्स्ट नंबर ग्रेटर एंड द सेकेंड नंबर इज +1. Not possible. दैट कैन ऑल्सो बी अ सेट. Not possible, because we are just taking here that is only two pairs, not third one. We can't enter a third pair. We have to just define the relation. हम लोग को ये relation define करना है, हमको transitive नहीं वहाँ पे verify करना है, तो सिर्फ दो पेयर के बेसिस पे ही आप डिफाइन कर सकते हो जो आपका गिवन कंडीशन है. तो आप जो थर्ड बोल रहे हो, थर्ड एलिमेंट, थर्ड पेयर का एलिमेंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है. वो जब इक्विवेलेंस आपको प्रूफ करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन आपको प्रूफ करना है, तो ही आप ट्रांजिटिव प्रूफ करना है. लेकिन यहाँ पे आपको गिवन जो चीज़ कंडीशन आपको दिया है, अकॉर्डिंग टू दैट, जस्ट अ सेकेंड, जो गिवन कंडीशन है उस गिवन कंडीशन के बेसिस पे ही आपको डिफाइन करना है. जस्ट अ सेकेंड. होप थिंग्स आर विजिबल. कंडीशन हमको जो गिवन है बेटा, वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखो कि रिलेशन हमको जो गिवन है यहाँ पे ए बी डैश या ए डी इज इक्वल टू बी सी पकड़ लो, जो प्रीवियसली था खाली यहाँ पे डैश डैश से रिप्रेजेंट है, तो वही कंडीशन सिर्फ इसमें फॉलो होना चाहिए. थर्ड वाला जो आप बोल रहे थे वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं होगा, क्योंकि हमको कंडीशन वो चीज़ नहीं दिया गया है. तो 3,2 पे हम लोग अभी यहाँ पे 3,2. ना सिमिलरली अगर 3,4 पे मैं देखूँ, 3,4, तो 3,4 के साथ भी ऐसा कोई पेयर मेरे को नहीं मिल रहा है जो डिफाइन कर सके, मतलब खुद से यहाँ पे डिफाइन कर सके. तो वी कैन राइट एज इट इज 3,4 एंड 4,3 बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, क्योंकि 4,3 एज इट इज, क्योंकि 3,4 और 4,3 आप नहीं ले सकते हो कि बाई चांस माइंड में आए कि वो सिमेट्रिक पार्ट है तो इक्वल हो, नहीं. यू हैव टू लुक ओनली दिस रिलेशन ओनली. सिर्फ ये रिलेशन पे आपको ध्यान देना है, वॉट एवर द रिलेशंस आर गिवन. सिमिलरली 2,5 as it is, 5,2, 5,2, and next one is a 3,5, 3,5 ऊपर नहीं लिया नहीं,
3,5, 5,3। अब जो ऑर्डर लेना है वो ले सकते हो, मतलब ज़रूरी नहीं कि मैं जिस टाइप से चल रहा हूँ आप 5,3 पहले लिखना चाहिए था, लिख सकते हो। 4, 4,5 we can take, and 5,4. So these are the relations which we define, that is according to A by AR. ये तो आपके बाय डिफ़ॉल्ट रिफ्लेक्सिव पार्ट हैं, ये चीज़ तो डिफाइन करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये तो डायरेक्टली आपके एग्जिस्टेंस पे मतलब हो जा रहा है आपका। ये एलिमेंट ले लो, इसका इसी पेयर के साथ आप अगर रिलेशन को डिफाइन करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट सेम ही टर्म मिलेगा, क्योंकि दोनों सेम वैल्यू है। But if I say that is a 1, 2, 2, 4 and 2, 1 and 4, 2. Similarly here, ये एलिमेंट्स लेते या कोई भी जो सिंगल यहाँ पे सेट क्रिएट हुए हैं, जस्ट लाइक 2, 5, 5, 2। अगर 5, 2 लेता हूँ मैं यहाँ पे, जस्ट लाइक 5, 2 रिलेटेड टू 5, 2, और ये चीज़ अगर यहाँ पे एग्जिस्ट करके देखना है आपको तो देख सकते हो 5 × 2 इज इक्वल टू 2 × 5। तो बाय डिफॉल्ट यू विल गेटिंग द सेम रिजल्ट। मतलब जो मेन कंडीशन आपको दिया है वो कंडीशन एग्जिस्ट होना चाहिए, वो प्रूव होना चाहिए, देन ओनली यू कैन से दैट इज ए बाय आर। और ए बाय आर का जो सेट लिखोगे आप अकॉर्डिंग टू दिस बेसिस लिखोगे। तो पहले मैंने ए सेट डिफाइन कर लिया। ए सेट डिफाइन करने के बाद मैंने क्या वर्क किया है, व्हाट वर्क वी हैव डन हियर, दैट इज वी जस्ट simplify the part here as according to the basis of R relation। 1,1, 2,2, 3,3, 4 ये तो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं आपके। फिर यहाँ पे अगर सिर्फ मैं 2,1 लिखता, 2,1 और 4,2 आ रहा है डायरेक्टली, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा टर्म्स करके देखना है अपने को, फर्स्ट इंटू लास्ट। अगर ये दोनों लूँ मैं तो नहीं पॉसिबल है, ये दोनों टर्म लूँगा तो नहीं पॉसिबल, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन अलग आ जाएगा। बट यहाँ पे अगर ये दोनों को मैं डायरेक्टली देखूँ तो फर्स्ट इंटू दिस 2 2 सा 4 और 1 × 4 दोनों इक्वल आ रहा है, वो हमारा एग्जिस्ट हो रहा है इस पार्ट में। तो इसलिए हमने इसको दोनों दोनों जो पेयर्स हैं उनको सेम सेट में हमने कंसिडर किया है, रखा है। सिमिलरली 1,2 हम देखोगे यहाँ पे 1,2 एंड 2,4, 1,2 एंड 2,4। तो ये चीज़ भी यहाँ पे एग्जिस्ट हो जा रही है, बिकॉज 1 × 4 बाय डिफॉल्ट यू आर गेटिंग 4 एंड 2 2 ज़ा 4 इज बाय डिफॉल्ट। दूसरे कोई ऐसे पेयर्स नहीं है ये दो पेयर्स हों जिनको हम लोग मतलब सिंप्लीफाई करके रखें यहाँ पे। तो ए बाय आर ऐसे रिलेशंस आपको डिफाइन करने आते हैं जो भी आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट रहेंगे उसको। सो होप थिंग्स आर क्लियर हाउ वी डिफाइन सच अ सेट। ए बाय आर वाला सेट हमने कैसे डिफाइन किया है। नो विल मूव हेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट आप सॉल्व कर लेना। सॉल्व क्या करना है, ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर जो अभी फर्स्ट ऊपर हमने देखा है, जो क्वेश्चन नंबर अकॉर्डिंग टू वही बेसिस से खाली वहाँ पे जो आपको दिया है कंडीशन, उस कंडीशन को खाली थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है। ए डी इज इक्वल टू बी सी है तो यहाँ पे ए डैश बी डैश, बाकी पूरा चीज़ें सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। सेकेंड पार्ट अलग था इसलिए सेकेंड पार्ट मैंने आपको डिफाइन किया है यहाँ पे। नाउ विल मूव अहेड विद द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। वन मोर क्वेश्चन वी हैव टू डिफाइन, last question on the basis of equivalence relation, third one from today point of view. R let R be a relation on a set A, show that R is an equivalence relation. R is an equivalence relation A comma C are
in relation implies that B comma C, sorry, implies that B comma C is in relation or R. Relation means R. So we have to define one by one. It is a very simple question. R is a, देखो यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन अच्छे से समझो. Let R be a relation on a set A, show that R is an equivalence relation. A comma C are in relation implies that B comma C is in R. तो अगर आपको इक्विवेलेंस रिलेशन है तो ये कंडीशन हमको डिफाइन करना है. सेकेंड थिंग, if this condition is given means we have to define that is a R is an equivalence relation. So we have to define one by one. So you will understand. I'm just writing here. Let A comma B, A comma B and A comma C belongs to R. Therefore, this implies B comma C belongs to R. Belongs to R. So we have to prove R is an equivalence relation. Equivalence relation. So first we are taking that is reflexive. So whenever we have to prove that is a reflexive, always remember that is A equal to B equal to C. A equal to B equal to C मतलब क्या? That is A comma A and A comma A belongs to R. Just like this part. A equal to B equal to C मतलब सब जगह A लिखना है, same element लिखना है, same terms आप define करोगे related. So by definitions of reflexive, that is A comma A belongs to R. Therefore R is reflexive. R is reflexive. Second, we have to prove that is symmetric. Symmetric. For a symmetric, always remember that is, अब यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया है कि ए डी इज इक्वल टू बी सी या ए बी इज इक्वल टू सी डी और समथिंग. यहाँ पे सिंपल क्लियरली क्या है आपको कहा है that is let R be a relation on a set show that R is an equivalent relation A comma C are in R implies that B comma C is in R. ये चीज हमको यहाँ पे खाली दिया है. तो रिलेशन हमको सिर्फ डिफाइन करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन डेफिनेशंस आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए. तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ A comma B belongs to R. A comma B belongs to R. Therefore we have to verify here that is B comma A is also belongs to R. So according to definitions, अगर A comma B belongs कर रहा है किसी R को तो B comma A भी belongs करेगा. So we can write that is A comma B belongs to R. Therefore B comma A is also belongs to R. Therefore by definition, therefore R is symmetric. And the last one we have to verify is a transitive.
transitive. So the two terms are already that taken, that is let a comma b and b comma c belongs to R. Therefore, according to C, that is this part is clearly given b comma a. I'm just taking this part as a b comma a and b comma c belongs to R because R is symmetric. R is symmetric. Already above proof किया है हमने. R symmetric है तो a comma b we can write as a b comma a. R is symmetric. So according to definition, अभी according to definitions क्या आपको कहता है definitions? अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो a comma b, a related to b related to c here, then we can say that is a related to c. Therefore this implies, or this definition implies, that is a comma c belongs to R. A comma c belongs to R. For the justification point, we can say that is a by definition, because a comma b belongs to b comma a related to b and b related to c is there, then we can say that is a related to c. So R is transitive. R is transitive. Therefore R is an equivalence relation. R is an equivalence relation. Very simple proof. Now see, ये चीज अब हमको प्रूफ करना है. A comma c are in R implies that b comma c in belongs to R. So I'm just verifying this part. Let R is an equivalence relation. Equivalence relation. Equivalence relation means what we have, that is now a comma b and a comma c, as we written a comma c belongs to R. This means what? अभी जस्ट ये पर आपने किया है b comma a and a comma c belongs to R, because why? R is symmetric. For the justification point of view, R is symmetric. According to this point, what we have to write, हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखो b comma a belongs to a comma c. If b related to a related to c, तो ये ट्रांजिटिव पेयर यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो आप. ट्रांजिटिव पेयर क्या होएगा? b related to c. So we can write as a b related to c belongs to R. Why? Because R is transitive. R is transitive. और यही हमको प्रूफ करना था. प्रूफ था देखो अच्छी तरह से. That is R is an equivalence relation. A comma c are in R implies that b comma c in R. So a comma b and a comma c a comma b and a comma c belongs to R. तो इसको जस्ट सिमेट्रिक के बेसिस पे हमने डिफाइन किया b comma a एंड ए सी बी, ये दोनों चीज़ तो आर में है. हमको प्रूफ करना था बी कॉमा सी भी आपका आर में है, मतलब रिलेशन में है. तो ए कॉमा बी को हमने सी को सिर्फ सिमेट्रिक के बेसिस पे लिखा है, ए बी कॉमा ए. और अगर हम लोग ट्रांजिटिव का बेसिस लगाएंगे तो बी रिलेटेड टू ए है, ए रिलेटेड टू सी है, सो वी कैन राइट बी रिलेटेड टू सी. And this is our proof. We just got this values, that is b comma c belongs to R, that is R is a transitive.
बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, इसमें कोई कंडीशंस नहीं दी गई हैं, सिर्फ कहा गया है कि अगर कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है और उसमें ए कॉमा सी रिलेशन में डिफाइन हो रहा है, तो बी कॉमा सी को भी रिलेशन में डिफाइन करके दिखाना है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे वेरीफाई किया है, इक्विवेलेंस रिलेशंस को डिफाइन किया है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप लोग सब लोग ट्राई करना है। क्वेश्चन इक्विवेलेंस रिलेशन का है। फोर्थ वन, लेट S is equal to 1 2 3 4 and A is equal to S into S. Define the following. Define the relation following relation R on A, that is A comma B related to A dash comma B dash, if and only if A plus B dash is equal to A dash plus B dash. Sorry, A plus B is equal to A dash plus B dash. So the first question is, we have to verify here, that is, show that R is an equivalence relation. Second, we have to verify, compute A by R. Compute A by R. So as we discussed the last question, hope you understand, that is S is equal to 1 2 3 4 and A is equal to S into S. Define the following relation. जैसे हमने प्रीवियसली किया, AD is equal to BC, उसी तरह प्रूफ करना है आपको, वेरीफाई करना है इक्विवेलेंस रिलेशंस को। यहाँ पे कंडीशन इंपॉर्टेंट है, द कंडीशन इज गिवन, दैट इज A प्लस B इज इक्वल टू A डैश प्लस B डैश। वेरीफाई करेंगे, एकदम सिंपली वेरिफिकेशन आप कर सकते हो इसको। सिमेट्रिक पहला रिफ्लेक्सिव लोगे तो उसमें सेम टर्म्स आप रिपीट करोगे, दैट इज ए कॉमा बी रिलेटेड टू ए कॉमा बी, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी होगा अकॉर्डिंग टू द अगेन द कम्यूटेटिव एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है वहाँ, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। सिमेट्रिक की बात आएगी तो यही दोनों टर्म्स आप लोगे, ए कॉमा बी रिलेटेड टू ए डैश कॉमा बी डैश, उसमें ऐड करोगे तो ए प्लस बी इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। खाली स्विच करो, मतलब वैल्यूज को, लेफ्ट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड रखो और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड, तो बाय डिफॉल्ट आप बोल दोगे ए डैश बी डैश। इसको अगर इस साइड में रखूँ तो ए डैश बी डैश रिलेटेड टू ए कॉमा बी, और वही आपका वेरिफिकेशन सिमेट्रिक में होता है। ट्रांजिटिव पेयर करना है तो ट्रांजिटिव में आपको 3 पेयर का जरूरत लगता है। तो फर्स्ट अगर आपने लिखा ए कॉमा बी रिलेटेड टू ए डैश बी डैश, तो सेकेंड आप लिखोगे ए डैश बी डैश रिलेटेड टू, यू कैन राइट ए डबल डैश कॉमा बी डबल डैश, ऐसा है। तो दोनों कंडीशन वेरीफाई करो, जैसे वहाँ पे हमने किया था उसी तरह इधर भी, यहाँ पे भी आप अप्लाई करोगे तो ये दोनों साइड में आपको कॉमन टर्म मिलेगा ए डैश प्लस बी डैश, ए डैश प्लस, तो दोनों इक्वल इक्वेट कर दोगे तो आपको बाय डिफॉल्ट रिलेशन डिफाइन हो जाएगा, तो ट्रांजिटिव होगा। और वो होने के बाद हम लोग को इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। फिर आप ये सेट ले लो, एस इक्वल टू 1 2 3 4, तो ए इक्वल टू एस इंटू एस, ये चीज़ डिफाइन करोगे तो जैसे वहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करके पूरा सेट बनाया था, बाद में उसको रिलेशन से डिफाइन कर दो, मतलब रिलेशन से डिवाइड कर दो। अब जो जो एग्जिस्ट होगा उसमें, जो जो टर्म्स एग्जिस्ट होगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश पे, वो एलिमेंट्स आप लिखोगे, रेस्ट एलिमेंट को आप कैपेसिटीज एलिमिनेट कर दोगे।
So just you have to go through with this part. Definitely you will understand how to tackle. अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट लेक्चर कल ही हम लोग का है, कल हम लोग इसके ऊपर सॉल्व करेंगे। बट हर कोई इस चीज़ को ट्राई करो, स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का और एक ट्राई करो। बहुत इजी न्यूमेरिकल है। लास्ट टाइम ही ये क्वेश्चन पूछा गया था 6 मार्क्स के लिए। एकदम सिंपल न्यूमेरिकल रहते हैं, सिर्फ आप कंडीशन अच्छी तरह से समझो कि कंडीशंस क्या दिया है और इक्विवेलेंस रिलेशंस कैसे वेरीफाई करना है। कोई बहुत इसमें डेरिवेटिव, इंटीग्रेशंस या एक्सपांशन ये सब ऐसा कुछ नहीं है, एकदम सिंपल मैथमेटिक्स है। सिंपल मैथमेटिकली आप इसको डिफाइन करो, तीनों डेफिनेशंस अच्छी तरह से याद रखो। From next point, next time whenever we will meet by tomorrow or day after tomorrow, we'll start closure properties of whatever terms you learn in relations. That is a reflexive closure, symmetric closure, and that is a transitive closure. So this is our equivalence relations over here. ये क्वेश्चंस अगर नहीं सॉल्व होता है आपसे, कल मुझे याद दिलाना। हमारा जब भी लेक्चर है, जो भी टाइम उस टाइमिंग पे, so that we will definitely try to solve, because सिंपल न्यूमेरिकल है। आप भी ट्राई करोगे, आना चाहिए रिलेशंस, इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन हो जाना चाहिए। तो विल मूव अहेड विद द अटेंडेंस पार्ट। इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी राइट नाउ। वन का सिमेट्रिक पार्ट नहीं समझा, क्वेश्चन वन का। ओके, जस्ट अ सेकंड, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग। क्वेश्चन वन मतलब आज का क्वेश्चन वन ना, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तो देखो, इसमें जो सिमेट्रिक पार्ट है, ए कॉमा बी रिलेटेड टू सी कॉमा डी, ये चीज़ है। सिमेट्रिक मतलब क्या होगा, अगर ये इसके रिलेटेड है तो सी कॉमा डी रिलेटेड ए कॉमा बी के होना चाहिए। यही हमारा सिमेट्रिक कॉन्सेप्ट होता है। ये चीज़ हमको गिवन है, अकॉर्डिंग टू गिवन ए डी इज इक्वल टू बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। सो वी जस्ट रिटर्न ए डी इज इक्वल टू बी सी। सिर्फ यहाँ पे बी सी को इधर इस साइड लिख दिया गया है, ए डी को इस साइड लिख दिया गया है, बाकी कुछ वर्क नहीं किया है अभी इसमें सेकेंड स्टेप में। फिर उसके बाद वैल्यूज को स्विच किया है, मतलब बी इंटू सी को हम लोग 2 इंटू 3 को 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो उसी तरह बी इंटू सी को वी कैन राइट एज अ सी इंटू बी। सिमिलरली ए इंटू डी इज इक्वल टू वी कैन राइट एज अ डी इंटू ए अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लीकेशन लॉ। अब अगर ए इंटू डी है तो हम लिखते हैं ए, और बी इंटू सी है तो ये बी यहाँ पर आता है। तो सिमिलरली सी इंटू बी और डी इंटू ए, मतलब सी और डी फर्स्ट ब्रैकेट में आ गए रिलेटेड टू ए कॉमा बी, ए और बी आपके सेकेंड ब्रैकेट में है। तो वी कैन से दैट इज आर इज अ सिमेट्रिक पार्ट। होप नाउ थिंग्स आर क्लियर। दर्शन, क्वेश्चन वन का ही आपने शायद बोला था पार्ट, सिमेट्रिक पार्ट आपको नहीं समझ में आया था, दैट्स आई एक्सप्लेन। ए कॉमा बी नो नो नो, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, नहीं ये क्यों आएगा, ए कॉमा बी बिलोंग्स, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू बी कॉमा ए नहीं आएगा ना। यहाँ पे हमारा, आप समझ नहीं रहे हो, यहाँ पे आपको सिर्फ ए कॉमा बी थोड़ी दिया है। ए कॉमा बी बिलोंग, ये पूरा मैंने आपको यही चीज़ लिए यहाँ पे लिखा है। ए रिलेट, अगर सिर्फ दो एलिमेंट है ए और बी है सिर्फ, तो ए रिलेटेड टू बी होता है तो बी रिलेटेड टू ए है। लेकिन यहाँ पे आप दो एलिमेंट को पूरा दो पेयर कंसिडर करोगे। यहाँ पे ए कॉमा बी ये पूरा एक एलिमेंट है आपका, और ये पूरा एक एलिमेंट है। अगर ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है या रिलेट है सी कॉमा डी के, तो सी कॉमा डी रिलेट होगा ए कॉमा बी के। ये देखो, इससे रिफ्लेक्सिव में ही आपने क्लियर किया है कि यहाँ पे पार्ट ए कॉमा बी रिलेटेड टू ए कॉमा बी ओनली। यहाँ पे ऐसा नहीं किया है कि ए रिलेटेड टू ए ओनली। तो यहाँ पे ए बी रिलेट टू बी रिलेट टू ए कैसे होगा, ये पूरा आपका एक एलिमेंट है। जस्ट ट्राई टू कंसिडर हियर, आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग यू दैट इज ए कॉमा बी जो आपका है, इसको आप पूरा माइंड में रख लो ए, और सी कॉमा डी को जो है उसको माइंड में रखोगे बी। तो अगर इसको डिफाइन करोगे ए रिलेट बी, बी रिलेट ए आपको डिफाइन करना होगा। तो ए क्या है आपका, ए कॉमा बी, सी कॉमा डी क्या है आपका, बी है। तो ये पूरा डिफाइन हो गया। बाद में आपको सी कॉमा डी रिलेट टू ए कॉमा ए करना पड़ेगा, वही चीज़ हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। होप थिंग्स आर क्लियर। डेफिनेशन वही है, लेकिन वो डेफिनेशन में सिर्फ एक एलिमेंट कहा था, लेकिन अब वो कंडीशन आपके ऊपर है। अगर आप वहाँ पे आगे जाके आपको तीन एलिमेंट के बारे में देता है एक पेयर पूरा, वो तीन एलिमेंट पूरा आपका एक ही टर्म होगा। So try to understand this concept.
Uh, anyway, don't move. Move. I'm just taking the attendance, and then we'll stop. Just wait. Okay. Now you can left if you want, and anyone having any doubts, you can ask, or we'll stop the lecture.